Hello friends and welcome to the analysis of today's Hindu. We'll look at the top stories and events from our examinations perspective. Let's get started. Alright, these are some important stories from today's Hindu. On the front page you will see Supreme Court to pass interim orders in Pegasus case. India, US to tie up on green energy. Government curbs funding of 10 NGOs. Okay, don't let judicial delays fail insolvency and bankruptcy code. That's an interesting update from the economy section. North Korea tests new long range cruise missile. Okay, quite like North Korea. Israeli firm unveils armed robot. That's an interesting update from the science and technology perspective. US Open men's singles, and then from the editorial there is a very interesting article, Talking Amid Conflict, which talks about US-China relations. So we will cover all these stories one by one and look at the facts which are relevant from our perspective. So Supreme Court to pass interim orders in Pegasus case. So I have provided you a detailed background of Pegasus, all the facts surrounding it in a decoded series video. You can again check it out on the YouTube channel of CLAT Prep. अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की हुई थी लोगों ने, जिसमें उन्होंने पूछा था वेदर द गवर्नमेंट हैज यूज्ड पेगासस, एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया to the Indian government, that whether you have used Pegasus against any opposition leader or journalist or a political activist or anyone. Okay, and they have asked the government to file an affidavit for the same, which the government has not done till now. And finally Supreme Court has said that we have enough, you have outlasted our patience and now we will pass the interim orders. Okay, we can't keep beating around the bush. We cannot wait for eternity. So the Supreme Court said that we will now pass interim orders. Having said that, they have reserved their orders. They have given a few more days to the Indian government to, if in case they want to submit anything. Otherwise the Supreme Court has said that they will pass their interim orders. So the Supreme Court has decided to pass interim orders, okay, where the government has not filed their affidavit, and the petitioners, what they are demanding for an independent inquiry. The petitioners demanded that either the cabinet secretary file an affidavit or the court itself form an independent committee led by a sitting judge to probe the snooping controversy. Okay, so what the Chief Justice of India said, he has said that the court has given the government a fair opportunity to file a detailed affidavit. We have given them enough time, but they have not come up with their side of view, and that is why the government, they have said that now we will pass our interim order. So the Supreme Court may set up an independent committee. Supreme Court may take any harsh action, in the upcoming days. We will see that. So some new initiative some new development in this particular controversy surrounding Pegasus. As I told you, you can learn everything about Pegasus in the detailed video which I have made on Pegasus, which is available on CLAT Prep YouTube channel. Okay, India, US to tie up on green energy. Okay, so India and USA are in talks right now. Okay, the US climate secretary has been, he's come to India, Mr. John Kerry. Okay, so John Kerry, who is the US special presidential envoy for climate, he is on official visit to India from September 12th to 14th, and there is a dialogue going on which is titled as Climate Action and Finance Mobilization Dialogue. So he has said that the dialogue focuses on 3 pillars. The first pillar is the climate change pillar, where they said that both US and India are talking about joint measures to prevent climate change. Okay, so a lot of action happening around climate, especially considering that there is a COP26 summit in November in Glasgow, Scotland. Second is the finance pillar, where US would and India would collaborate on attracting finance to deploy 450 megawatt of renewable energy. Okay, so we have a certain target to reach 450 megawatt of renewable energy, and US will assist that in developing a roadmap to achieve that target, and maintain clean transition, that once we generate renewable energy, how can we deploy it in certain sectors like transportation, infrastructure, buildings, all that kind of issues. Then third pillar is about adaptation and resilience, that once the climate change hits us, okay, how
the countries can respond to that if there is a climate crisis, excess heat waves, excess rainfall, cyclones, how they can either help each other. So the third pillar is focusing on adaptation with the climate change. The US will also work in India for the protection of forest. So some important initiatives will be discussed and some important outcomes will be reached. We'll have to keep a tab on these. गवर्नमेंट कर्ब्स फंडिंग फॉर 10 क्लाइमेट चेंज एंड चाइल्ड लेबर एनजीओ. देखो आप लोगों को शायद याद हो कि कुछ साल पहले अराउंड 5 years अगो ग्रीन पीस नाम के एक एनजीओ की फंडिंग गवर्नमेंट ने रोक दी थी. ठीक है, उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था और अभी गवर्नमेंट ने फिर से 10 एनजीओज की फंडिंग रोक दी है. दीज फंडिंग्स बिलोंग टू अमेरिका, यूरोप. ठीक है, और ये जो एनजीओज हैं दे आर लार्जली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज़ और चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज़. अब ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट हैज़ डन दिस अंडर FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एनजीओज की फंडिंग को ओवरसी कर सकती है एंड दे कैन स्टॉप देम फ्रॉम रिसीविंग डोनेशंस इफ दे फाइंड दैट दे आर engaged in anti-national activities. So the government has moved to restrict the funding for a group of 10 American, Australian and European NGOs dealing with environment, climate change and child labor issues. Government has specified a number of foreign entities to be placed on prior reference category using the stringent FCRA. तो prior reference category क्या है? RBI को कुछ एक कैटेगरी दे दी जाती है, एक होम मिनिस्ट्री से एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये NGOs जो हैं इनकी फंडिंग आपके पास, इनके पास कोई भी पैसा तभी पहुंचना चाहिए जब होम मिनिस्ट्री उसे अप्रूव करे. ठीक है, इफ दे फाइंड दैट देयर आर एनजीओज विच आर फॉर हुज एक्टिविटीज आर सस्पिशियस, दे पुट देम इन अ प्रायर रेफरेंस कैटेगरी. ठीक है, सो फंड्स आर अलाउड टू बी क्रेडिटेड टू द रेसिपिएंट्स ओनली आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर डिवीजन ऑफ द FCRA विंग. ठीक है, अब क्यों ज़्यादातर ये जितने जो एनजीओज हैं ये क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं या चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए हैं, इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया है? बिकॉज दे आर मेकिंग अ प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट to do more in the climate summit. So that despite India's impressive records, despite that India is following most of the promises which it made in Paris Climate Accord, there are these different NGOs who are pushing for more. They are basically working against India's, so they are for example saying that India should not use coal, okay, which is the chief source of energy as of now, thermal energy. तो उसके अलावा they are projecting India as a country which is employing a lot of forced labor. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या इमेज टार्निशिंग एक्टिविटीज़ की वजह से इन एनजीओज को ब्लॉक किया गया है. ठीक है, सो यू कैन सी दिस हियर दैट व्हेन आस्क्ड व्हाई सो मेनी एनवायरमेंटल एनजीओज आर ऑन द लिस्ट, द ऑफिशियल सेड दैट डिस्पाइट इंडियाज फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन कंप्लाइंग विद द पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल प्रेशर्स आर इंटेंसिफाइंग ऑन इंडिया टू रेज द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. दैट इज व्हाई फॉर द फर्स्ट केस. एंड सेकेंड, दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू ILO's ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स which ranked India 53rd out of 167 countries where modern slavery was prevalent. So of all these, because of all these activities, these NGOs are on the radar of Ministry of Home Affairs. Let's look at the next update. Don't let judicial delays fail IBC. IBC is Insolvency and Bankruptcy Code, which is a very kind of a landmark scheme, Insolvency and Bankruptcy Code, which basically एक्सपेडाइट्स द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. तो बेसिक क्या होता था कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती थी, इंसॉल्वेंट हो जाती थी, तो क्या होता था कि उसके एसेट लिक्विडेशन में काफ़ी समय लगता था और उसको जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो भी बर्बाद हो जाते थे. ठीक है, तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट वांटेड बिजनेस क्लाइमेट टू इम्प्रूव, सो दे केम अप विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विच बेसिकली प्रिस्क्राइब्स अ मैकेनिज्म जिसमें अगर कोई कंपनी ऐसा कहती है कि हमारे पास तो अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर उसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा रेजोल्यूशन प्लान है, इट शुड बी रेडी विद इन 180 डेज. तो उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया कि 180 दिन में ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए और अगर सिचुएशन परसिस्ट करिए तो इसे मैक्सिमम 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है. उसके लिए बॉडीज सेटअप हुई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सेट हुए हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स केम इनटू लाइफ. देन देयर इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जहां पर ये केस फाइल होगा. देन देयर इज अ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल NCLAT जहां पर इस केस के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, जो भी रेजोल्यूशन प्लान एग्री हुआ है उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है. तो ये पूरा प्रोसेस सेटअप हुआ है. तो अभी क्या हो रहा है, इसमें जुडिशियल डिलेज आ रहे हैं. अभी भी NCLT जो वो 180 डेज का टाइमलाइन है उसे मीट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है बार बार. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार फिर इस एक्ट का फ़ायदा क्या है? इस एक्ट का फ़ायदा यही तो है ना कि आप एक टाइम बाउंड रिजोल्यूशन कर रहे हो इंसॉल्वेंसी का, कि भैया इतने टाइम में आपका पैसा वापस आ जाएगा, इतने टाइम में आपका रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर इन प्लेस होगा.
अगर इसमें भी आप जुडिशियल डिलेस कर रहे हो तो पहले भी तो यही हो रहा था, पहले भी तो तारीख पे तारीख वाले काम हो रहे थे, तो अभी भी अगर आप वही करोगे देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ अ लॉ। तो Supreme Court has held that judicial delay should not be a reason leading to the failure of insolvency and bankruptcy court regime like the way it did in the days before the code. Before the code came into existence, से पहले भी एक्ट्स थे, सरफाइजी एक्ट था, इस तरह के एक्ट्स थे, बट उनमें भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर केस ही चलाने तो फिर इस एक्ट का फायदा क्या है, ठीक है। Okay, this is about insolvency and bankruptcy code. The code outlines separate insolvency resolution processes for individuals, companies and partnership firms. ठीक है, इसके अंडर कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए एनसीएलटी में केस फाइल किया जा सकता है, बाय क्रेडिटर्स भी किया जा सकता है, डेटर भी कर सकता है। यानी लेट्स से मेरी कंपनी खराब हो रही है तो मेरी कंपनी खुद भी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर सकती है। अ मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी हैज बीन सेट। फॉर कॉर्पोरेट्स इट्स 180 डेज, फॉर इंडिविजुअल्स इट्स 90 डेज। ठीक है, स्पेशल केसेस में 180 डेज को 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 270 डेज तक पहुंचाया जा सकता है, और 90 डेज को 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 135 डेज तक पहुंचाया जा सकता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ओके, आई होप सो। नॉर्थ कोरिया टेस्ट न्यू लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। तो पूरी दुनिया के ऑपोजिशन के अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूज टू टेस्ट वेपन्स। Okay, it has recently tested a long-range cruise missile which can carry a nuclear warhead. It's a long-range cruise missile, which means it can hit up to 1500 kilometers. ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया क्या कहता है कि we have to develop these weapons because of the hostility with USA and South Korea. So it says that USA और South Korea दोनों हमारे enemy countries हैं, and to survive we have to keep developing these kind of weapons. So North Korea long range cruise missile 1500 kilometers away because of hostility from US and South Korea. So this is again one update in today's newspaper. Now this is very interesting. Israeli firm unveils armed robot to patrol borders. ठीक है, तो इजराइल में एक फर्म है जिसने एक आर्म्ड रोबोट बनाया बॉर्डर्स पे। तो दिस रोबोट विल टेक प्लेस ऑफ सोल्जर्स। सो दिस इज नॉट अ साई-फाई मूवी, दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम, जहां पर इजराइल इज ऑलरेडी यूजिंग दीज काइंड ऑफ सोल्जर्स इन गाजा स्ट्रिप बाय द वे, बट ये थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, तो यानी सोल्जर्स की जगह रोबोट्स जो हैं वो बॉर्डर्स पे पेट्रोल करेंगे, एंड दे कैन कैरी मशीन गन्स। ठीक है, और दे कैन सेंस इन्फिल्ट्रेशन एंड दे कैन किल। अब इस पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया साइंटिफिक कम्युनिटी में कि क्या रोबोट्स लाइफ एंड डेथ डिसीजंस ले सकते हैं, एंड इफ़ दे टेक इट तो फिर वो जो टर्मिनेटर टाइप मूवीज़ हम लोग देख रहे थे या इंडिया में जो रोबोट टाइप मूवीज़ देख रहे थे, दैट मे बिकम अ रियलिटी। ठीक है, तो an Israeli defense contractor unveiled a remote controlled armed robot, it says, which can patrol battle zones, track infiltrators and open fire. ठीक है, it was developed by Israel Aerospace Industries Rex Mk2. Operated by an electronic tablet, can be equipped with 2 machine guns, cameras and sensors. Robot can gather intelligence for ground troops, carry injured soldiers and supplies in and out of battle and strike nearby targets. तो देखो, soldiers को carry करना तक तो ठीक है, ठीक है, रोबोट आप तक ammunition पहुंचा रहा है वो भी ठीक है, बट I mean, authorizing robots to carry machine guns and open fire is something which has to be seriously debated. Israeli military is currently using a smaller but a similar vehicle called Jaguar to patrol the border within the Gaza Strip. Okay, so already Jaguar use कर रहे हैं हम लोग, and it will be interesting to see how this all plays out. देखो, अभी मुझे याद है थोड़े टाइम पहले अगस्त के महीने में ये बात हुई थी कि साउथ अफ्रीका में पहला ऐसा पेटेंट दिया गया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पेटेंट दिया गया था। उसमें रोबोट ने कुछ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बेटर ग्रिपिंग फूड कंटेनर्स बनाए थे, एंड द सेम क्वेश्चन केम टू माय माइंड, इफ यू आर गिविंग रोबो इट्स ओन माइंड वेयर ही कैन बी क्रिएटिव ऑल्सो, देन यू आर प्रिपेयरिंग अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. ओके, but I don't know, so many talented people are doing it, they must be having their own rationale, but this is something really threatening, I mean creatively dangerous happening. तो स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट देखते हैं. यूएस ओपन मैन सिंगल्स फाइनल हुआ एंड मेडवेडेव डिफीटेड नोवाक जोकोविच. तो क्या खास बात है, किसी को जीतना ही था, किसी को हारना ही था, बट खास बात यह कि दाव पे क्या लगा, व्हाट वाज एट स्टेक. So Djokovic was about to win a calendar slam. What is a calendar slam? Grand Slam में 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन. ठीक है, यूएस ओपन को छोड़ के बचे हुए तीनों के मैन सिंगल्स जोकोविच इस साल जीत चुके थे. इफ ही वुड हैव वन दिस, ही वुड हैव कंप्लीटेड अ कैलेंडर स्लैम. एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का करिश्मा वो कर दिखाते, जो इससे पहले अब तक सिर्फ 5 बार हुआ है. ठीक है, सो जोकोविच वॉज
about to win that and he could have been the greatest of all time. ठीक है, टाइटल्स में भी वो he could have surpassed रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल एंड ऑल. तो मगर ये हो ना सका. मेडवेडेव डिफीटेड जोकोविच टू विन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल. ठीक है, सो डैनियल मेडवेडेव डिफीटेड जोकोविच टू विन मैन सिंगल्स टाइटल एट 2021 यूएस ओपन. ठीक है, तो हु आर द 5 प्लेयर्स जिन्होंने इससे पहले ये करिश्मा किया है? स्टेफी ग्राफ, मार्गरेट कोर्ट, मॉरीन कॉनॉली, डॉन बज एंड रॉड लेवर. रॉड लेवर डिड इट ट्वाइस इन 1962 एंड 69. सो इट्स अमेजिंग, राइट? तो वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट. नब एडिटोरियल्स के बारे में बात करते हैं. एडिटोरियल्स में आज एक ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट. इट्स अबाउट यूएस एंड चाइना रिलेशंस. तो हुआ क्या कि हम सब जानते हैं कि इस समय यूएस एंड चाइना आर एट ऑपोजिट एंड्स. बोथ ऑफ देम आर वर्ल्ड सुपर पावर्स एंड बोथ ऑफ देम आर कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग. ठीक है, इस सिनेरियो में जो बाइडेन कॉल्ड शी जिनपिंग लास्ट वीक. ठीक है, जो बाइडेन ने जिनपिंग को कॉल किया, चाइनीज प्रीमियर को कॉल किया, एंड ही सेड दैट कंपटीशन शुड नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेट करने चलना चाहिए. अचानक से यूएस का ये सॉफ्ट स्टैंस क्यों? ठीक है, यूएस और चाइना के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से पिछले 5 सालों में तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं. ट्रेड वॉर चल रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे. अचानक से ये सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से आया? तो वो इसमें एक्सप्लेन किया गया. रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट पावर्स हैव बीन इन फ्री फॉल ओवर द पास्ट 5 years. जो बिडेन कॉल्ड शी जिनपिंग एंड व्हाई द यूएस हैज सॉट चाइनीज कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान. तो जो बाइडेन, द यूएसए हैज विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान. तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और तालिबान के काफ़ी अच्छे रिलेशन है चाइना से. तो अफगानिस्तान सिचुएशन पे अमेरिका को चाइना का सपोर्ट चाहिए. उसके अलावा क्या है? ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट समिट होने वाली है. ठीक है, अमेरिका और चाइना दोनों बराबर के दोषी हैं क्लाइमेट को फैलाने में, क्लाइमेट में, पोल्यूशन में. दोनों बहुत बड़े एमिटर्स हैं. तो यहाँ भी दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, एट द सेम टाइम इनके बीच में काफ़ी सारे क्लैशेज हैं. किन चीज़ों को लेकर क्लैशेज हैं? अमेरिका ने उंगली उठाई है ह्यूमन राइट इश्यूज इन जिनजियांग प्रोविंस. तो चाइना में जो जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है उनको लेकर के यूएसए ने क्रिटिसाइज किया है. फिर साउथ चाइना सी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट है यूएसए और चाइना के बीच में. फिर यूएसए ने कोविड-19 के लिए भी चाइना को जिम्मेदार ठहराया था. तो उसको लेकर के भी यूएसए कहता है कि इसके बीच में प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये वायरस चाइना ने कैसे फैलाया है. ठीक है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बड़े इश्यूज हैं. तो चाइनीज साइड हैज मेड इट क्लियर इट सीक्स कंसेशंस ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इश्यूज बिफोर इट डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स. तो चाइना ने बहुत साफ साफ कहा है कि पहले हम पुराने इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ही हम नए इश्यूज पे आपकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो चाइना के इश्यूज क्या हैं? चाइना ने कहा है, चाइना प्रेजेंटेड 2 लिस्ट ऑफ डिमांड टू द यूएस. उन्होंने कहा पहले तो हमारी पार्टी के लीडर्स को जो आपने वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं यूएसए पे वो हटाएं ताकि वो लोग यूएसए में इजीली आ जा सकें. उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हुआवेई नाम की कंपनी है, इट्स अ वेरी फेमस टेलीकॉम कंपनी, उस पर कनाडा में ट्रायल चल रहा है स्पाइंग को लेकर के. उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो यूएसए ने चाइना पे लगा रखी है कि आप जो है हुआवेई के मालिक को हमें वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी आप वापस लें. उसके अलावा चाइना ने क्या कहा कि आप ये जो कोविड-19 की इंक्वायरी करने की बात कर रहे हो इसको भी आप वापस लो. तो ये इश्यूज जब आप रिजॉल्व कर दोगे उसके बाद कहीं जाके हम बात कर सकते हैं कि हम अफगानिस्तान में आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं. ओनली देन वी आर ऑन द टेबल. और यूएसए ये डिमांड मानने वाला है नहीं, सो रिलेशनशिप्स खराब ही रहने वाले हैं. ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ हुई जो मैंने आपके सामने रखी. ठीक है, तो ये तो स्टोरीज हुई जो आज हमने इंपॉर्टेंट स्टोरीज डिस्कस की. अब वक्त आता है कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें. तो मैंने ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं. ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ वीडियो में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और विंबलडन होता है. ठीक है, तो अब आज हम क्या पूछेंगे? आज हम बात कर सकते हैं क्योंकि आज भी मेन सिंगल्स जोकोविच हार गए. आज फिर हम ग्रैंड स्लैम पे बात कर रहे थे. तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब देना है. अगेन आप कमेंट सेक्शन पे अपना आंसर देख सकते, पुटअप कर सकते हैं. आई विल सी टू इट एंड विल रिस्पॉन्ड टुमारो विद सम न्यू स्टोरीज. टिल देन टेक केयर, कीप रीडिंग.